A very good morning in Jai Hind class 11th. Once again, welcome to the online class of business studies. Continuing with chapter number 2, that is directing. My dear students, we are done with the topic financial and non-financial incentives. Financial, which can be expressed in terms of money, and they are pay and allowances, productivity linked wage incentive, bonus, profit sharing, co-partnership or stock option, perks or perquisites, retirement benefits, commission. Okay. Next is non-financial incentives. They cannot be expressed, they cannot be measurable in terms of money. All peoples have different need, and their way for motivation is also different at work, right? So some of the types of financial incentive which we have discussed are status, organizational climate, job security, opportunity for career advancement, job enrichment, employee recognition, employee participation, employee empowerment, right? And as well as we have discussed the difference between the both financial as well as non-financial incentives. So this is what we are done with the element of directing. Now comes the next concept, and that is concept of leadership. दूसरों को मनाना, दूसरों से काम कराना, उन्हें परसुएट करना फॉर स्पेसिफाइड गोल्स इज लीडरशिप, राइट? It is the ability to persuade others to work for specified goals. देखो, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, और दूसरों से काम करवाना इतना ईजी नहीं होता है. लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स टू वर्क फॉर specified goals. How? It is a process of influencing the behavior of employee by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational objective. इस तरह से इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो खुद से वॉल्टियर करें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. उनको किस तरह से मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना, राइट? एंड इट इज़ द लीडर हु क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप. लीडर क्लियर करता है what is the objective of the organization, and he is leading and creates and sustain enthusiasm. वो लीड करता है, गाइड करता है और enthusiasm प्रोवाइड करता है among them for achievement of the objective. लीडर होता कौन है? लीडर is the one who guide and direct other people. He gives the effort of his followers and a direction and purpose by influencing their behavior. जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं, वो उन ऑर्डर को अपने नीचे काम करने वालों को समझाता है, उनका पर्पस बताता है और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है कि वी हैव टू वर्क ऑल टुगेदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. कैसा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. So what is the definition of leadership? It is the ability of a superior, right, to induce subordinates to work with confidence and a zeal. enthusiasm के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं subordinates, ठीक है? वो काम कराने का तरीका होता है लीडरशिप. लीडर इज़ द वन हु गाइड एंड डायरेक्ट अदर पीपल. So leadership is basically a process of influencing and has the following features. दूसरों पर प्रभाव डालना, और वो कैसे डालते हैं? Influence the behavior of others to achieve certain objectives. आपका नेचर, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, सबका अलग अलग होता है ना? उससे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना और आपको किसी चीज़ के प्रति मोटिवेट करना, राइट? दैट यू हैव टू अचीव दिस गोल. एक लीडर में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन. ही would imagine what is the organization is expected from them. He must have a good personality. He must be mature. Human relation orientation. आपस में व्यवहार अच्छा रखे अपने कलीग्स के साथ. Second, it is a process of influencing the behavior of others in a particular way. एक तरीके से काम होता है, एक तरीके से हम लोगों को समझा पाते हैं what the organization is expecting from you and what you are supposed to do. What is the way you can do this work?
इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। एक रिलेशन बन जाता है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में जो उन्हें फॉलो करते हैं। देखो, आप मुझे फॉलो इसलिए करते हो, यू नो Neha ma'am is the subjective teacher, business studies teacher. We are supposed to follow her if we want to learn something and if we want to achieve good marks, right? इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में if they want something else, जो कि आपने incentives पढ़े हैं above from the salary, they need to follow their leader. It is a continuous process. Next is, it is a continuous process of influencing behavior. आज मैंने आपसे एक काम करा लिया है, आज आपने अपना अच्छे से पढ़ाई की, you got 80 out of 80 marks, then next batch will come और I will again do the leadership. मैं फिर से उन्हें गाइड करूँगी, मोटिवेट करूँगी. So it does not end anywhere. A leader always provide guidance to his followers wherever necessary or asked for. जब जहाँ ज़रूरत होती है, पूछा जाता है, लीडर हमेशा गाइड करता है अपने फॉलोअर्स को. लाइक आई एम हियर टू गाइड, योर टीचर्स आर देयर टू गाइड यू, यू आर ऑल द फॉलोअर्स. आप फॉलो करोगे, यू विल अचीव 100%, और एल्स वाइज आपको पता है, राइट. 6th पॉइंट, लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट द होल ऑफ इट. ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है पर पूरी तरह से नहीं. इंपॉर्टेंट होता है बट आप इसे ये नहीं कह सकते इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एग्जैक्टली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो हम इस चीज़ को कवर अप करने के लिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. सी, लीडरशिप इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मैनेजर्स जॉब. As like you have been appointed in a company as on the managerial position, so it is a part of yours. Leadership is a quality in you and it is just a kind of a role. So manager is more than a leader. आप एक पोजीशन पे हो, आप इस पोजीशन पे इसलिए हो because you deserve it, you have those qualities. But leadership is a part of management, right? Not all of it. और management, leadership is only a part of manager's job. Management जो देखता है सारा फंक्शन. मैनेजमेंट में मैनेजर हैज़ टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एक मैनेजर को प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, डायरेक्ट लीड, गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल करना होता है इफ़ यू वांट टू अचीव, बिकॉज ही हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. बट अ लीडर कैन ओनली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर. उसे पता है कि मुझे काम कराना है, उस तरह से मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करना है अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें. ठीक है. स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. इनफॉर्मल कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें फॉर्मल होती हैं. ठीक है, एक तरीके से की जाती हैं, ऑर्गेनाइज, प्लान, डायरेक्ट, कंट्रोल करके. बट लीडरशिप ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी होती है, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है. लेट्स सपोज आपकी लीडर से आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, तो वो वैसे ही आपसे काम करा सकता है, वो आपको बता सकता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंपनी, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि ये फॉर्मल ही हो, इनफॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द लीडर. अथॉरिटी, मैनेजर मेक यूज़ ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट. उसके पास अथॉरिटी होती है, ऑफिशियल फॉर्मल अथॉरिटी, कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सके. लीडर केवल काम करता है प्रभाव डालने का, इन्फ्लुएंस करने का, कि मेरे पीछे पीछे आओ, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, आपको ऐसा करना है. वी हैव टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव थ्रू द यूज़ ऑफ इनफॉर्मल अथॉरिटी और पावर. उसको पता है वो मैनेजर है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पोजीशन भी खतरे में आ सकती है. इट जस्ट तो वो लोगों से काम कराने की अलग अलग टेक्निक्स निकालता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस between management and leadership. Okay, now come on and let's read the styles of leadership. किन किन तरह के leaders होते हैं. It is a very interesting topic. The behavioral pattern which a leader exhibits in getting things done through others. उसे काम कराता है जब लीडर, और वो एक पैटर्न अडॉप्ट करता है, उसे कहते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप. किस तरह का लीडर है. Different leadership style exist among leaders at different times in different situation. अच्छा, लीडरशिप स्टाइल भी बेटा अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन देख कर आता है. किस तरह के लीडर की ज़रूरत है. लीडरशिप स्टाइल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिटरमाइंड बाय लीडर्स पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम.
ये सब लीडर पे डिपेंड करता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस टाइम पर, उसके टाइप ऑफ फॉलोअर्स क्या हैं, लोग कितना मानते हैं उसको, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में डील कर रहा है, किन तरह के लोगों के साथ डील कर रहा है. सो देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो कि अथॉरिटी के बेस्ड पर होते हैं. दे आर ऑटोक्रेटिव, जिन्हें अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, फ्री रेन और लेजेस फेरे लीडरशिप. Okay, so let us discuss it one by one. First, have a look on this chart. See, this is the autocratic leader. Leader is here and employees are here. There is a gap between leader and employees here. Participative leader में there is a circle around here, around the leader and the employees. Okay. Next is लेजेस फेरे लीडर, इसमें लीडर इज़ हियर एंड एम्प्लॉयज़ आर हियर. सो कुछ देखा देखा ऐसा लग रहा है कि इसमें मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, लाइक सपोज इन फर्स्ट सिचुएशन, इसमें अब एग्जाम्पल लेते हैं. जो एग्जाम्पल इसमें बनता है दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडर में मिस्टर ललित जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं सन इंडिया के, ठीक है, उन्होंने अलोकेट किया वर्क 3 फॉरमैन को, B, C और D. Right? When here we are talking about the autocratic leader. The autocratic leader. So Mr. Lalit, he is the production manager. He is the production manager. Okay. So what he has done, he allocate work to 3 foremen. Foremen जो काम करते हैं B, C और D. इन लोगों को कुछ काम दिया और उससे रिलेटेड कोई नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप किस तरीके से काम को कंप्लीट कर सकते हो. तो इसमें मिस्टर ललित इज़ अ ऑटोक्रेटिक लीडर, जहाँ लीडर और एम्प्लॉयज़ में एक गैप हो गया. इसे काम कराना था. ही मिस्टर ललित द प्रोडक्शन मैनेजर, ही इंस्ट्रक्ट 3 फॉरमैन दैट इज़ B, C एंड D, गाइड हिम, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, हाउ टू कंप्लीट द वर्क. So he become an autocratic leader. Next is participative. ठीक है, Mr. Lalit ask B, C and D to set their goals. B, C and D यही same foreman है. Mr. Lalit, he asked here with these 3 foremen to set their target for next month, कि अपना टारगेट सेट करो अगले महीने का क्या होगा. फिर उसके बाद उसे डिस्कस करेंगे उनके साथ कि उस टारगेट को अचीव कैसे करें. सेट द टारगेट एंड देन डिस्कशन करेंगे वो कि पहले आप टारगेट सेट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अचीव दैट टारगेट. सो मिस्टर ललित इज़ हियर गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू हिज सबॉर्डिनेट्स कि भाई अब तुम्हारा काम है, यहाँ तो बता दिया तुम्हें क्या काम करना है और कैसे करना है. ये हो गए ऑटोक्रेटिक लीडर्स. पार्टिसिपेटिव ने अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट को इम्पोर्टेंस दी कि आप खुद से डिस्कस टारगेट सेट करो कि आप कितना कर सकते हो, फिर हम डिस्कस करेंगे उसे अचीव कैसे करेंगे. ही इज़ अ पार्टिसिपेटिव लीडर जो अपने फॉरमैन के साथ पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट इज सिचुएशन दैट इज लेजेस फेरे. मिस्टर ललित गेट आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव अवार्ड. मिस्टर ललित को आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव अवार्ड मिला है, ठीक है. क्यों मिला है? फॉर विच B, C एंड D वॉन्ट टू गिव हिम अ ट्रीट, जिसके लिए B, C और D क्या किया मिस्टर ललित ने. मिस्टर ललित ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जिससे B, C, D और 3 इन्फॉर्मेंट ने अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, जिसके बदले में मिस्टर ललित को आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव अवार्ड मिला, ठीक है. मिस्टर ललित गिव्स देम फुल फ्रीडम टू फिक्स द वेन्यू. मिस्टर ललित ने कहा भाई आप वेन्यू फिक्स करो खुद से और पार्टी के लिए मेन्यू भी आप खुद डिसाइड करो. सो ही इज़ हियर बिहेविंग एज अ फ्री रेन लीडर, ठीक है. जैसे लेट्स सपोज हम स्कूल में बात करते हैं, ऑल द टाइम प्रिंसिपल सर इज़ नॉट ऑन द हेड ऑफ द टीचर्स और द कोऑर्डिनेटर्स और एनीबॉडी कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. वंस अ सिलेबस हैज़ बीन अलॉटेड टू द टीचर्स दैट यू आर सपोज टू टीच दिस अकॉर्डिंग टू दिस वे,
ठीक है। तो हियर द रोल ऑफ द प्रिंसिपल इज़ द लेजेस फेयर लीडर, ही इज़ बिहेविंग, उन्होंने छूट दे रखी है कि आप लोग अपने हिसाब से काम करो जैसे आपको करना है, बस मुझे तो लास्ट में रिजल्ट 100% रिजल्ट चाहिए, स्पेशली इन बोर्ड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, चाहिए सब जगह 100% रिजल्ट इन एवरी एक्टिविटी, इन एवरी कॉम्पिटिशन। तो ही इज़ हियर बिहेविंग एज अ ट्रीटिंग एज अ एवरीबॉडी एंड ही इज़ एक्टिंग एज अ लेजेस फेयर ए लीडर। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडर को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सच अ लीडर, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा इसे। सच अ लीडर फॉलोज ऑटोक्रेटिक और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, काम बता देंगे, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। दे गिव ऑर्डर्स टू बी ओबेड बाय द सबॉर्डिनेट, वो ऑर्डर्स देते हैं जो सबॉर्डिनेट्स को ओबे करने होते हैं, मानने होते हैं। ही सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर इन हिमसेल्फ, अगेन सेंट्रलाइज हैज़ कम। सेंट्रलाइज का मतलब ही सेंट्रलाइज, ये मिस्टर ललित ने BCD और इन 3 फॉरमैन को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑर्डर्स दिए जो इन्हें मानने हैं, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें काम करना है। मिस्टर ललित चाहें तो ही सेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग पावर, वो मना कर देंगे नहीं आप ये आप इस चीज़ जॉब से हट जाइए, आप दोनों को काम करना है, आपको मैं कुछ और काम दूंगा। तो इट्स अप टू मिस्टर ललित ओनली, सारी पावर उनके हाथ में है यहाँ पर। ही टेक डिसीजन फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग द ग्रुप मेंबर, वो कंसल्ट नहीं करते और वो डिसीजन ले लेते हैं ग्रुप के लिए और सिंपली उन्हें बता देते हैं कि आपको करना क्या है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन केवल वन वे होता है, फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट। सेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पर, ये जब चाहे मिस्टर ललित तब कोई भी डिसीजन इनके लिए ले सकता है। इससे सिर्फ पर्सनल प्रेज मिलता है लीडर को, या कोई बुराई मिलती है तो वो भी लीडर को मिलती है। जो ये लोग करते हैं काम, ये इनिशिएटिव लेते हैं, दे रिमेन अलूफ फ्रॉम द ग्रुप फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। एक तो ये ग्रुप से अनजान रहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाट आर द कंडीशन, क्योंकि इन्हें तो बस ऑर्डर देना एंड दे हैव टू ओबे, दैट्स इट। So here are some features of autocratic leadership, and they are: an autocratic leader gives order and insist that they are followed. ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा ऑर्डर देता है और ये चेक करता है कि दे हैव बीन फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट्स। वो पॉलिसीज़ बनाता है ग्रुप के लिए बिना उनसे कंसल्ट किए, बिना उन्हें बताए, बिना उनसे डिस्कशन किए हुए। जैसे हमने पार्टिसिपेटिव में तो डिस्कस करते हैं, वो कुछ डिस्कस नहीं करता ऑटोक्रेटिव लीडर, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है। ओके, नेक्स्ट, ही डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान्स बट सिंपली टेल्स द ग्रुप व्हाट इमीडिएट स्टेप दे मस्ट टेक। वो आगे का फ्यूचर प्लान नहीं बताता, टारगेट सेट नहीं करता, आगे के बारे में डिस्कशन नहीं करता, बट ये बता देता है ग्रुप को कि इस समय क्या स्टेप लेना है। राइट नाउ यू ऑल आर सपोज टू डू व्हाट। ओके, अंडर दिस स्टाइल द डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। सब बॉस वही है, वो चाहे तो कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता है। ही डज नॉट गिव द सबऑर्डिनेट एनी फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन, कोई अपना इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगा, वही डिसीजन लेगा जो बॉस है। ऑटोक्रेटिक और यू कैन से बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, देखो इसका डायग्राम चार्ट इज हियर। ही इज द बॉस, he is instructing B, C and D, that's it, and they are supposed to do what he is instructing. This style is like bossing people around. बॉस को पसंद होता है ना हमारे चारों तरफ लोग घूमते रहें और मैं जिसको जो बोलूँ वो करें, तो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज दैट लीडरशिप, दैट इज autocratic leadership. Okay, so I hope you all just revise it up to here. Second one we'll discuss it tomorrow. Okay, so by the time, have a good learning. Thank you.